Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. Hope all of you are doing good in your studies. In my last lecture I started photosynthesis and in that we discussed about the basic introduction and the history part of photosynthesis. Today we are going to discuss about the structure of chloroplast and chlorophyll. So let's start with the topic. So in my last video, I told you that what is the raw material required for photosynthesis. It is carbon dioxide, okay, water, sunlight, and chlorophyll. Out of these four material, carbon dioxide is present in the air and is taken by the plant by the process of gaseous exchange. Clear? If we talk about the water, it is present in soil and it is taken up by the plant through roots, or we can say it is absorbed by roots. The third component is sunlight, okay, and the fourth one is chlorophyll. So we will discuss about these two components one by one. In today's lecture I am going to discuss about the chlorophyll, that where it is present, and what is its function. Clear? So let's start with the topic without wasting the time. Actually, if we talk about the photosynthesis, अभी तक हमको ये पढ़ाया गया है कि जो plants के green part होते हैं वहां पर photosynthesis होती है. Okay, what we know that in photosynthesis occur in green parts of plants like leaves, most important, and herbaceous stem, और इसके अलावा any green part of the plant which is above the ground or exposed to sunlight is able to do photosynthesis. Clear? Why? क्यों ये green part ही photosynthesis कर सकता है? Because this green part contain chloronchymatous cells. Chloronchymatous cells क्या होते हैं? These are simple parenchymatous cells contain chloroplast. ठीक है, कैसे? जस्ट क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस को मेजॉरिटी में मानते हैं कि लीव्स के थ्रू होती है. ठीक है, जो मेजर स्ट्रक्चर है प्लांट का लीव्स है जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, तो मैं उसी के रेस्पेक्ट में बात करूंगी. हियर इज द फिगर ऑफ अ लीफ. ठीक है, लीफ का जो ये लैमिना होता है या जो ब्लेड होता है, इसका एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर ये दिखाया है मैंने. यहाँ पर आप देखो इसकी अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो एरिया है, मीन्स दिस वन, it contained palisade layer and spongy mesophyll cells. Both of these cells contain chloroplast. Okay. Palisade और spongy mesophyll की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, just have a look of a single mesophyll cell. Here is the structure. This green structure, this is chloroplast. ठीक है, तो नाउ इट इज क्लियर टू यू कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट है. हम लीफ की बात कर रहे हैं. लीफ के भी अगर हम एक क्रॉस सेक्शन देखें तो इसमें इसकी जो पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होती हैं, इनकी सेल्स में ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है. क्लियर? नाउ कम टू द क्लोरोप्लास्ट. क्या है ये क्लोरोप्लास्ट और इसका क्या फंक्शन है? क्लोरोप्लास्ट इज बेसिकली द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस.
वाई? क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं क्या होते हैं? प्लास्टिड्स ऑफ ग्रीन कलर हैं, ठीक है। ये ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में प्रेजेंट है, अभी मैंने आपको बताया। बेसिक इसकी अगर मैं डिटेल्स की बात कर लूँ तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, देखो नीट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो जस्ट आपको लर्न करना है। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट अगर मैं बात करूं, ये मैं सारा डेटा हायर प्लांट्स के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ। मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम की मैं बात करूं तो 500,000 पर स्क्वायर मिलीमीटर, ये नंबर होता है क्लोरोप्लास्ट का। लीफ की बात हो रही है ये। 500,000, जस्ट इमेजिन हाउ मच डेंसली पैक्ड इन द सेल, ठीक है। और जनरली ये कहाँ प्रेजेंट है? मोस्टली इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, ठीक है। एंड यंग स्टेम। इसकी शेप की अगर बात करूं तो शेप होता है डिस्कॉइड और एलिप्सॉइड और बाइकॉन्वेक्स, लाइक दिस। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये, है ना। इसका डायमीटर 4 to 10 माइक्रोमीटर और इसका थिकनेस 1 to 3 माइक्रोमीटर। जस्ट लर्न इट, ठीक है। जस्ट कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। आप देखो ये ये दो मेम्ब्रेन है इसमें, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर membrane. Both of these membrane combinedly called what? Envelope. ठीक है। envelope क्या है? If we write down the detail of it, double membrane and these membranes are selectively permeable. Selectively permeable, ये important है। And what is the meaning of selectively permeable? Just watch my previous videos of water absorption, वहाँ आपको मिल जाएगा। Inside this envelope there is a fluid. इस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। What we called it? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? लिक्विड प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स है ठीक है। इसमें सारे नेसेसरी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, ठीक है। कंटेन ऑल द नेसेसरी एंजाइम्स required for photosynthesis. In addition, यहाँ पर आप देखो फिगर में ये क्या है? ये दिस इज सर्कुलर डीएनए,
जिसको हम प्लास्टिडोम भी कहते हैं, प्लास्टिडोम। ठीक है, यहाँ पर क्या है ये 70s राइबोसोम्स। क्लियर। तो इसके मैट्रिक्स में और क्या मिल रहा है हमको, मैट्रिक्स कंटेन 70s राइबोसोम्स एंड सर्कुलर डीएनए। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए, एक एक क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसके अलावा यहाँ पर आरएनए भी मिलता है, एंड आरएनए ऑब्वियसली जब डीएनए है तो आरएनए भी मिलेगा। व्हाट डज इट मीन, एक्चुअली जो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है ये सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है, सेमी ऑटोनॉमस, वेट, बॉडी है। इसका मतलब ये है क्योंकि इसके पास सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है इसके पास, तो ये कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस खुद करती है और पार्शियली इट इज डिपेंडेंट अपॉन द सेल्युलर डीएनए, मेन डीएनए। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। क्लियर। तो मैट्रिक्स में प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स है, सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी हैं, एंड इन एडिशन इट कंटेन्स 70s राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए एंड आरएनए, द मशीनरी विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो ये कुछ स्टेक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर इसको हम कहते हैं ये जो सिंगल सेक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं थाइलेकोइड। थाइलेकोइड क्या है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर, सेक लाइक स्ट्रक्चर है। इस थाइलेकोइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, कंटेन क्लोरोफिल। अब होता क्या है कि ये थाइलेकोइड, जैसे आप कॉइन्स को एक के ऊपर एक रख के स्टैक बनाते हो, ऐसे ये थाइलेकोइड्स कहीं कहीं पर ये स्टैक बना लेते हैं लाइक दिस, ये एक के ऊपर एक ये इन्होंने स्टेबल होकर स्टैक बनाया हुआ है। इस स्टैक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रेना, ग्रेनम, सिंगुलर इज कॉल्ड ग्रेनम and the plural is called grana, means this chloroplast contain multiple granas and singular is called granum. So what we call it, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ग्रेनम। ग्रेनम क्या है, थाइलेकोइड्स अरेंज one above the other and make stick। ठीक है, अब आप देखो ये जो एक ग्रेनम है ये दूसरे ग्रेनम से यहाँ यहाँ पर ये देखो ये जुड़ा हुआ है इस, ठीक है। ऐसे आप देखो सारे ग्रेनम एक दूसरे से ये स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं आपस में, कोई भी सेपरेट नहीं है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रेनल, सॉरी स्ट्रोमल लैमेली, क्योंकि ये स्ट्रोमा में मिल रहा है ये स्ट्रक्चर, तो हम इसको कहते हैं स्ट्रोमल लैमेली। मीन्स ये वॉल यही मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ये थैलेकोइड भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, और ये मेम्ब्रेन्स जो स्ट्रोमा में मिल रही हैं उनको स्ट्रोमल लैमेली कहते हैं, और यहाँ पर जो ये मेम्ब्रेन्स हैं इनको ग्रेनल लैमेलीज बोलेंगे। मतलब ये स्टेक के अंदर जो ये वॉल है इसको हम बोलेंगे ग्रेनल लैमेली। ठीक है, ये स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली, और इसको हम फ्रीट चैनल्स भी कहते हैं, फ्रीट चैनल्स। ठीक है, what does it functions, it work like interconnections of granal lamella। ठीक है, ये वॉल से वॉल जुड़े हुए हैं।
ठीक है, तो ये है एक सिंपल स्ट्रक्चर एक क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ मिल रहा है? इनसाइड द थाइलेक्वाइड। ये सेक जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, तो थैलेक्वाइड्स के बारे में जरा सा पढ़ेंगे कि थैलेक्वाइड मैंने कहा कि ये आपस में जुड़े रहते हैं, एक के ऊपर एक स्टैक बना लेते हैं, तो इनकी जो कैविटी होती है, इनकी जो ल्यूमेन होती है, वो भी आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो द लोक्यूलस ऑफ थैलेक्वाइड इज कनेक्टेड विद द स्पेस ऑफ अदर थैलेक्वाइड्स एंड फॉर्म अ कॉमन थैलेक्वाइड स्पेस, है ना। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, if you talk about the function, it is the site of light reaction, site of light reaction, or we can call it photochemical reaction। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो पिगमेंट्स मैंने बोला, क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है ना। द पिगमेंट्स like chlorophyll and others are located in thylakoid membrane। इसकी मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं। कैसे? अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो थैलेक्वाइड का फंक्शन क्या है? बेसिकली इट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। और स्ट्रोमा जो होता है, स्ट्रोमा, इट इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। इट इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। क्या होते हैं ये? हम इसको सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो दिस इज क्लियर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। सेमी ऑटोनोमस बॉडी का मतलब है ये अपना डीएनए इसके पास है, राइबोसोम्स है, आरएनए है, ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, बट कुछ प्रोटीन्स के लिए ये सेल्यूलर डीएनए पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस बॉडी। इसके स्ट्रोमा में सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। इन एडिशन ये जो स्ट्रोमा होता है, इट इज़ द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, डार्क रिएक्शन की साइट क्या है, एज वेल एज ये आपका ये साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, ये भी नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन होती है आपके थैलेक्वाइड्स में और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। थैलेक्वाइड्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये दिस वन, ये एक के ऊपर एक स्टेक बना, इकट्ठे होकर स्टेक बना लेते हैं। जैसे कॉइन्स को आप एक के ऊपर एक रख दीजिए, स्टेक बनता है। इसको हम कहते हैं ग्रेना। वन स्टेक इज कॉल्ड ग्रेनम। ये ग्रेनम, इसकी वॉल को कहते हैं ग्रेनल लैमेली। अब ये ग्रेनम आप देखो स्ट्रोमा में ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो जिन स्ट्रक्चर्स के द्वारा के थ्रू ये जुड़े हुए हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमेली। दीज आर द इंटरकनेक्शन ऑफ ग्रेनल लैमेलीज। क्लियर? स्ट्रोमल लैमेलीज या फ्री चैनल्स भी इनको बोला जाता है। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। इसको फुल व्यू में मैं आपको दिखा देती हूँ। जस्ट हैव अ लुक। ठीक है, तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल यूनिट। अगर मैं बात करूँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, हमारे पास जो पिगमेंट्स हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वो 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल एक लिविंग वर्ड की मैं बात कर रही हूँ, फिर मैं हायर प्लांट्स की बात नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो पिगमेंट्स हैं दीज आर क्लोरोफिल, शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स दो टाइप के होते हैं, कैरोटीन्स एंड xanthophyll। ये तो आपके हायर प्लांट्स की बात हो गई। इन हायर प्लांट्स, इन लोअर प्लांट्स एक और पिगमेंट मिलता है फाइकोबिलिन्स, मैं इसको बाद में बताऊंगी आपको। तो बेसिकली ये जो पिगमेंट्स होते हैं लाइक क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड ये पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहाँ एम्बेडेड है? इट इज लोकेटेड इन द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। ये ग्रुप बना लिया इन्होंने, एंड दे आर लोकेटेड इन द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। अगर मैं बात करूं ग्रुप्स की, तो कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे पास?
तो ये हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स मिलते हैं हमको स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहला है आपका फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1, उसको हम PS1 भी कहेंगे बाद में। ठीक है, दूसरा है फोटो सिस्टम 2 और इसको PS2 के नाम से भी जानेंगे। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होते हैं, साइटोक्रोम B6F, ये है कॉम्प्लेक्सेस, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो अरेंज होती हैं एक के बाद एक। एंड इसके अलावा एक ATPase कॉम्प्लेक्स होता है जो कि ATP की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। ये सब 4 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं ये लोकेटेड हैं आपके, ये देखो, थैलेकोइड मेम्ब्रेन में। इस तरीके से आपका ये वेट, ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है ATPase कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दिस वन, ये है ATPase कॉम्प्लेक्स। ये जो डार्क ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है फोटो सिस्टम 1, PS1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो हिस्सा है आप देखो अगर थैलेकोइड मेम्ब्रेन का, ये वाला और ये वाला, ये एक्सपोज है बाहर को, तो हम इसको बोलते हैं कि नॉन एप्रेस्ड पार्ट, लोकेटेड इन नॉन एप्रेस्ड पार्ट। ठीक है, एज वेल एज ये कहाँ मिलेगा आपको, ये देखो, ये जो स्ट्रोमल लैमलीज है, ये जो आगे कनेक्शन है दूसरे ग्रेनम के साथ, ये इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो यहाँ पर मिलेगा, एज वेल एज इन स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, तो PS1 यानी कि फोटो सिस्टम 1 कहाँ पर लोकेटेड है, जो ग्रेनम का एक्सपोज पार्ट है, आउटर मेम्ब्रेन, ये जिसको हम नॉन एप्रेस्ड पार्ट कहते हैं, एज वेल एज जो कनेक्शंस थे बीच में दो थैलेकोइड के बीच में, मीन्स आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर ये स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ के जो आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर जो नॉन एप्रेस्ड पार्ट है वहां पर एक्सपोज हो रहे हैं PS1। क्लियर, ये जो राउंडेड आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम 2, और इसकी लोकेशन आप अगर देखो तो कहाँ है, ये इनर वॉल्स में है जो एक्सपोज नहीं है, तो इसके लिए हम लिखेंगे इट इज लोकेटेड इन एप्रेस्ड पार्ट, एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेनम। ठीक है, और जो आपके साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बीच बीच में यहाँ कहीं लोकेटेड रहते हैं, मेम्ब्रेन में ही एम्बेडेड रहते हैं। तो इन ऑल जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये जो पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये सब के सब कहाँ मिलते हैं, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट या फंक्शनल यूनिट, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, मीन्स इफ आई राइट smallest structural and functional unit of chloroplast, इसको हमने नाम दिया है क्वांटासोम। क्वांटासोम, और क्वांटासोम बेसिकली है क्या, यही जो आपके PS1 PS2 ये जो हैं ये आपके स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे फोटोसिंथेसिस में, तो इनको हम कहते हैं क्वांटासोम। ठीक है, Quandosome, these are the particles which are embedded in the surface of thylakoid membrane. Particles embedded in the surface of thylakoid
मेम्ब्रेन। इसके स्ट्रक्चर डिटेल में अभी बाद में बताऊंगी मैं कि ये PS1 और PS2 कैसे पार्टिकल बनाते हैं, क्या क्या इनका कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगेन अगेन ये नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जस्ट लर्न इट केयरफुली। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर क्या है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोफिल बेसिकली प्रेजेंट कहाँ है, क्वांटासोम कहाँ है, ग्रेनम, स्ट्रोमा और सारे फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। एक्चुअली ये लोकेटेड कहाँ है, मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रही हूँ अभी, इनकी लोकेशन आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। नाउ कम टू द पिगमेंट पार्ट। हम क्लोरोफिल की बात करेंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। पिगमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? पिगमेंट्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, दे कैन एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। हमें फोटोसिंथेसिस के लिए विजिबल लाइट चाहिए। मैं लाइट के नेचर के बारे में भी, सनलाइट बचा है आपका एक कंपोनेंट, उसके बारे में भी बताऊंगी आपको। तो पिगमेंट्स का बेसिक फंक्शन क्या है कि ये सनलाइट में से विजिबल स्पेक्ट्रम को, उस स्पेक्ट्रम में भी स्पेसिफिक वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करते हैं और फिर आगे की फर्दर रिएक्शन कंटिन्यू करवाते हैं। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स की बात करूं, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, फैट सॉल्युबल है, that's why they are located in the lipid part of the thylakoid membrane. Just it is important कि ये फैट सॉल्युबल है और इस वजह से ये कहाँ लोकेटेड है, लिपिड पार्ट में, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के। अगर मैं टाइप की बात करूं, अभी मैंने आपको बताया था टाइप्स, पिगमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पर मैं सारा इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ टाइप्स की। तो टाइप्स में आपका है क्लोरोफिल्स, ठीक है, और कैरोटिनॉइड्स जो कि आपके हायर प्लांट्स में मिलते हैं। इसके अलावा मैंने बोला था फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स ये आपके मिलते हैं इन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये दो आपके इन हायर प्लांट्स, मीन्स मेजॉरिटी में ये हायर प्लांट्स में मिलते हैं, ऐसा नहीं कि लोअर कैटेगरी में नहीं मिलेंगे, बट मेजॉरिटी में ये हायर प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो पिगमेंट्स की बात क्या हो गई कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी विजिबल रीजन की, ठीक है। फैट सॉल्युबल है और इसलिए ये मेम्ब्रेन पार्ट में, जो लिपिड पार्ट है, वहां पर एम्बेडेड रहते हैं। क्लियर? नाउ कम टू दीज पिगमेंट्स वन बाय वन। यही बताना है आपको इस लेक्चर में। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल अगेन ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उनमें ये मिलेगा आपको, एक्सेप्ट इन बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट है अगेन, ठीक है, कि क्लोरोफिल बैक्टीरिया के अलावा सभी जगह जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पर आपको मिलेगा। अगर इनके टाइप्स की बात करूं, दे आर ऑफ 10 टाइप्स। द फर्स्ट 5 टाइप्स आर क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई। 5 टाइप तो ये हो गए। देन बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड डी, एंड देन बैक्टीरियोविरिडिन। ये 10 टाइप्स के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग सिस्टम में मिलते हैं, ठीक है। इसकी मैंने एक ये टेबल बनाई है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिविंग वर्ल्ड्स में कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल ए की मैं बात करूँ, इट इज प्रेजेंट इन ऑल द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, ठीक है। क्लोरोफिल बी की बात करें, क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा एंड इन ऑल हायर प्लांट्स, ये 3 कैटेगरीज है जहां पर ये मिलेगा। देन कम टू द क्लोरोफिल सी, इट इज प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी, फियोफाइटा, डायटम्स एंड पायरोफाइटा। जस्ट लर्न इट कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। क्लोरोफिल डी, इट इज प्रेजेंट इन रेड एल्गी, दैट और रोडोफाइटा ग्रुप जो है एल्गी का, वहां पर ये मिलते हैं। क्लोरोफिल ई जेंथोफाइटा में मिलता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल पर्पल बैक्टीरिया में और बैक्टीरियोविरिडिन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। अगेन ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आराम से लर्न कर लीजिए, डेली रिवाइज कीजिए, 4-6 दिन में आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है आपका पिगमेंट्स का, कि कौन से ग्रुप में कौन सा पिगमेंट आपको मिल रहा है। ये मैं क्लोरोफिल की बात कर रही हूँ, जो मैंने बताया 10 टाइप्स के होते हैं। क्लियर?
ये टेबल आपको मिल जाएगी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट किसी अगर और किसी टेक्स्ट बुक में आप देखना चाहेंगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। मैं इसको इनलार्ज करके दिखा देती हूँ। जस्ट यू कैन मेक योर नोट्स ऑल्सो। दिस इज द टेबल। And of all these pigments, chlorophyll A and chlorophyll B, means these two pigments are widely distributed among the plants, green algae and higher plants. Chlorophyll A and B, ये इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्चुअली जो आप फोटोसिस्टम 1 और 2 की बात करेंगे उसमें इन्हीं का मेजर रोल है। ठीक है, अब बात आती है कि ये इतने सारे पिगमेंट्स हैं और ये ग्रुप में मिलते हैं तो सबका क्या फंक्शन है। अगर मैं इनके फंक्शन की बात करूं तो क्लोरोफिल ए जो है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी पिगमेंट। ठीक है, इसको हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है इन द फोटोकेमिकल रिएक्शन, है ना। तो वी कैन राइट इट, डायरेक्टली take part in photochemical reaction. ठीक है, that's why it is called primary photosynthetic pigment. और अदर पिगमेंट्स की अगर मैं बात करूं, चाहे वो क्लोरोफिल बी, सी, डी एंड ई है, या कैरोटीनॉइड्स हैं, या फाइकोबिलिन्स हैं, इन सबको हम कहते हैं एकेसरी पिगमेंट्स। एकेसरी पिगमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, है ना, तीनों की मैं बात कर रही हूँ। एंड एब्जॉर्ब करने के बाद ये ट्रांसफर करते हैं एनर्जी किसको, इसको, क्लोरोफिल ए को। तो वी कैन राइट हियर, डू नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली, ठीक है, इन photochemical reaction, बट क्या करते हैं ये, एब्जॉर्ब स्पेसिफिक wavelength of light and transfer the, just wait a minute, transfer the energy to chlorophyll A। ये इंपॉर्टेंट है अगेन, इनका क्या फंक्शन है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एकेसरी। एकेसरी का मतलब होता है हेल्पिंग, हेल्पिंग पिगमेंट्स। ठीक है, तो क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी को क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देते हैं, और क्लोरोफिल ए जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है फोटोकेमिकल रिएक्शन में, इसको एनर्जी चाहिए रिएक्शन करवाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम इन पिगमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी पिगमेंट और एकेसरी पिगमेंट। तो क्लोरोफिल ए जो है वो आपका प्राइमरी पिगमेंट है एंड रेस्ट अदर पिगमेंट्स आर कॉल्ड एकेसरी पिगमेंट। क्लियर? और ये ग्रीन कलर के क्यों दिखाई पड़ते हैं भाई? सिंपल सा, आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन का फिनोमेना, कि ये जो पिगमेंट्स होते हैं सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्सेप्ट द ग्रीन लाइट। ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और वही हमारे आईज पे आती है तो हमको वो ग्रीन कलर की दिखाई पड़ती है, दैट्स व्हाई दे अपीयर ग्रीन इन कलर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बट मुझे लगा कि ज़रूरी है, बता देती हूँ मैं। ठीक है, एंड पिगमेंट्स, ये जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स, they absorb both ends of the visible spectrum, like ये एक स्पेक्ट्रम है तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मिलता है इधर, ठीक है, और इधर
ये आपकी ब्लू लाइट की तरफ, रेड लाइट की तरफ, ग्रीन को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दैट्स वाई दे अपीयर ग्रीन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये बात हो गई पिगमेंट्स की। पिगमेंट्स में भी हमने क्लोरोफिल के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। क्लोरोफिल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये भी अगेन ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ही टॉपिक। तो बहुत आराम से, बहुत ध्यान से देखो आप। इट वॉज गिवन बाय विल्स टेटर, स्टॉल एंड फिशर in 1912। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, ये देखो, ये वाला जो लेफ्ट साइड जो स्ट्रक्चर है दिस, ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है। अगर आप देखो तो ये एक टेडपॉल लाइक स्ट्रक्चर है। टेडपॉल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना। तो ये हेड है, ये दिस वन इज, अगर इसको मैं बात करूं, ये दिस इज हेड एंड दिस इज टेल। तो टेडपॉल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं डिटेल में देखूं, यहाँ पर आप देखो, ये 4 रिंग्स है, मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन 4 रिंग्स को, ये 4 पायरोल रिंग्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड है, अगेन ध्यान रखना, लिखा हुआ है शुरू में। ठीक है, सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉट एरोमेटिक, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्ट्रक्चर में देखिए आप, 4 रिंग्स हैं, दिस 4 रिंग्स आर कॉल्ड पायरोल रिंग्स, दैट्स व्हाई द हेड इज कॉल्ड टेट्रापायरोल। यहाँ पर आप में देख लो, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पोरफायरिन हेड और फाइटोल टेल, दो में डिवाइडेड है। हेड हेड इज मेड अप ऑफ 4 पायरोल सॉरी रिंग्स। क्योंकि 4 पायरोल रिंग्स का बना है, इसलिए इसको टेट्रापायरोल कहते हैं। टेट्रापायरोल। ठीक है, अब ये रिंग्स देखो आप, आपस में ये यहाँ पर बाउंडेड हैं। ये देखो, एक ये इससे जुड़ी है, ये यहाँ जुड़ी है। अगर इन 2 रिंग्स की बात करो तो ये जुड़ा, ये है मिथाइल ग्रुप्स। इन मिथाइल ग्रुप्स के थ्रू ये चारों रिंग्स जुड़े हुए हैं, मिथाइल ग्रुप्स के थ्रू। ठीक है, तो व्हाट वी राइट हियर, they linked together by methane group to form a ring। ठीक है, ये एक रिंग बन गया ना, लाइक दिस। इस रिंग के सेंटर में देखो आप, मैग्नीशियम आयन है। तो द सेंटर ऑफ द रिंग इज ऑक्युपाइड बाय मैग्नीशियम आयन। सेंटर of the ring is occupied by magnesium ion। अब ये मैग्नीशियम आयन बीच में लटका हुआ नहीं है, जस्ट इमेजिन, जस्ट लुक एट हियर कि ये जुड़ा हुआ है। ये जो रिंग्स के नाइट्रोजन थे उनके साथ इसने बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, तो ये व्हाट वी राइट हियर कि इट फॉर्म bond with nitrogen atom of 4 pyrrole rings। तो ये हेड का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। 4 पायरोल रिंग्स हैं जो कि आपस में मीथेन ग्रुप के थ्रू जुड़े हुए हैं, इसलिए एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। बीच में मैग्नीशियम आयन है जो कि रिंग्स के नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है और सेंटर में लोकेटेड है। तो ये एक रिंग बन जाता है जिसको हम कहते हैं टेट्रापायरोल रिंग। इसको पोरफायरिन हेड कहा जाता है, जो हेड है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। नाउ कम टू द फाइटोल टेल। फाइटोल टेल क्या है, इसके बारे में पहले बता देती हूँ। इज मेड अप ऑफ 20 कार्बन एल्कोहल, मेड अप ऑफ
20 कार्बन एल्कोहल, दैट्स वाई द नेम इज फाइटोल। ऑल जो आ जाता है वो एल्कोहल के लिए आता है, ठीक है। इट फॉर्म एन एस्टर लिंकेज। अब आप यहाँ ध्यान दो कि ये टेल किस ग्रुप, किस रिंग से जुड़ी हुई है, किस लिंकेज विद फोर्थ पायरोल रिंग। जस्ट हैव अ लुक, आई विल शो यू। ये देखो, ये फोर्थ रिंग है, इसके साथ ये एस्टर लिंकेज बना, एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये एक एल्कोहल है 20 कार्बन का, जो एस्टर लिंकेज के थ्रू फोर्थ रिंग से जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो ये है आपका क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सेंट्रल पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय विच आयन, कितने रिंग का बना हुआ हेड है, हेड पोरफायरिन हेड क्यों कहते हैं, ठीक है। फाइटोल टेल किस बॉन्ड्स, किस रिंग से जुड़ी है, किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ी है। तो यही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ो, याद कर लो इसको। अब क्लोरोफिल बी की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल ए और बी में सिर्फ एक ही जगह डिफरेंस होता है, एंड वो डिफरेंस कहाँ पर होता है, आप ध्यान से देखना। ये देख रहे हो मिथाइल ग्रुप, और ये आपका अगेन ये सेकेंड रिंग है। मैंने पूरा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया यहाँ पे, ये सेकेंड रिंग है, ठीक है। पायरोल रिंग, सेकेंड पायरोल रिंग। ये सेकेंड पायरोल रिंग में मिथाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड विद द एल्डिहाइड ग्रुप इन क्लोरोफिल बी, रेस्ट द स्ट्रक्चर इज सेम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन फॉर नीट। इन क्लोरोफिल बी the methyl group is replaced by which group? Aldehyde group. This is aldehyde group. ठीक है, CHO लिख भी दिया मैंने यहाँ पे यार, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ द स्ट्रक्चर इज अरेंज इन टेडपोल लाइक मैनर, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आर द कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। क्लोरोफिल्स थे, फिर कैरोटिनॉइड्स थे, और उसके बाद फाइकोबिलिन्स थे। 4 स्ट्रक्चर थे हमारे पास। कैरोटिनॉइड्स क्या हैं? ये किस कलर के होते हैं? येलो, ब्राउन, ऑरेंज एंड रेडिश कलर। मतलब रेड कैटेगरी में जितने आपके वैरायटी मिल रही है वो इस कलर यहाँ मिल जाएंगे आपको कैरोटिनॉइड्स में, है ना। ये भी मिलते हैं, क्लोज एसोसिएशन बनाते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के साथ, क्योंकि ये केसरी पिगमेंट का काम करते हैं। जस्ट रिमेंबर, मैंने पीछे लिखा है कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं केसरी पिगमेंट्स का काम करते हैं। तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के साथ क्लोज एसोसिएशन बनाते हैं इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। क्या फंक्शन है इसका? बिकॉज दे आर कॉल्ड केसरी पिगमेंट्स, दे एब्जॉर्ब लाइट इन मिड रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एंड ट्रांसफर इट टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए, वो अकेला नहीं कर सकता, इसलिए उसको हेल्प करने के लिए ये सारे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जस्ट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब फोटोलाइसिस होती है वाटर की, वहां पर नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। बताऊंगी जब मैकेनिज्म की बात करूंगी। ये नेसेंट ऑक्सीजन अगर यहाँ से ना हटाई जाए तो ये क्या करेगी? ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का फोटो ऑक्सीडेशन कर देगी, ठीक है। तो इस नेसेंट ऑक्सीजन को, जो कि फोटो ऑक्सीडेशन, जो फोटोलाइसिस हो रही है वाटर की उस समय जब रिलीज हो रही है, इसको ये फटाक से वहां से क्लियर करता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, और इसको रिलीज करा देते हैं। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी गैसियस फॉर्म में होती है और ये डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाती है थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। तो ये कैरोटिनॉइड्स का मेजर फंक्शन है, केसरी पिगमेंट का तो काम करेंगे ही करेंगे, प्राइमरी फंक्शन तो ये है ही है, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन, है ना। और सेकेंडरी फंक्शन इनका ये है कि ये फोटोलाइसिस जो होती है उसको, सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन क्या है? ये क्लोरोफिल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स 2 टाइप के होते हैं, पहले भी लिखा है मैंने, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन ये कहाँ मिलता है? इसका एग्जाम्पल है बीटा कैरोटीन, आपने सुना होगा, रेडिश में मिलता है ये बीटा कैरोटीन, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? बीटा कैरोटीन
हमारी बॉडी में बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस इट इज कन्वर्टेड टू विटामिन ए. बीटा कैरोटीन इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स. मतलब जब ये हमारे बॉडी में जाता है तो ये हमारी बॉडी इसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है. ज़ैंथोफिल का एग्जाम्पल है ल्यूटिन. ये भी हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है. ल्यूटिन और ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन, बोथ ऑफ दीज आर required by our eye for the proper functioning of eye, for the visibility, better visibility. ठीक है. तो ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन ये भी कैरेट्स और इसके जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपको मिल जाएगा. ठीक है. तो ये दो टाइप हो गए आपके कैरेटनॉइड्स के. नाउ कम टू द फाइकोबिलेंस, लास्ट कैटेगरी ऑफ द पिगमेंट. प्रोटीन लिंक्ड पिगमेंट है. ठीक है. प्रोटीन लिंक्ड पिगमेंट फाइकोबिलिसोम्स, उनको प्रोटीन से जब लिंक्ड हो जाते हैं तो ये फाइकोबिलिसोम्स बनाते हैं और ये अटैच होते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन से. एब्जॉर्ब करते हैं ग्रीन टू रेड लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म. ठीक है. फाइकोबिलेंस जब प्रोटीन से लिंक्ड होते हैं तो ये फाइकोबिलिसोम्स बन जाते हैं और ये ग्रीन और रेड लाइट में वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं. ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है. ग्रीन टू रेड के बीच का जो स्पेक्ट्रम है वो एब्जॉर्ब करेंगे. वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं. दीज आर नॉट फैट सॉल्युबल लाइक कैरोटिनॉइड्स एंड द क्लोरोफिल. ये एक डिफरेंस है. डिफरेंस फ्रॉम क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स. वो फैट सॉल्युबल होते हैं. दीज आर फैट सॉल्युबल. ठीक है. क्या फंक्शन है इनका? हेल्प एज ए केसरी पिगमेंट. केसरी पिगमेंट. अब एक केसरी पिगमेंट का क्या मतलब है आपको क्लियर है ना? उसको मैं नहीं बता रही हूँ. क्या काम करते हैं ये? डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ट्रांसफर टू क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. एब्जॉर्ब light, sorry, absorb light, shit, and transfer it to chlorophyll molecule. ठीक है. इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, दे आर, ये थोड़ा सा ध्यान दे लो, ओपन tetrapyrrole but do not contain magnesium ion and phytol chain और टेल. मतलब जो 4 रिंग्स आपने देखी थी ना 1 2 3 4, ये ओपन कर दें अगर आप तो इस तरीके से ये अरेंज है यहाँ पर. ठीक है. एंड सॉरी 1 2 3 एंड 4. ठीक है. और इसमें कोई टेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है. ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये टेट्रापायरोल रिंग का. ठीक है. इसके टाइप की अगर मैं बात करूं, अगेन ये इंपॉर्टेंट है. डिफरेंस आ गया ना क्लोरोफिल से, तो ये इंपॉर्टेंट है. डिफरेंस से याद करो आप. ठीक है. अगर टाइप की बात करूं तो फाइकोबिलेंस आर ऑफ 2 टाइप, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोरिथ्रिन. फाइकोसाइनिन इसका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है. या साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं. ठीक है. और फाइकोरिथ्रिन का एग्जाम्पल है रेड एल्गी. यहाँ पर ये मिलता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, देन क्लोरोफिल उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन. डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे आगे जब मैकेनिज्म बताऊंगी. तो फोटोसिस्टम्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा सारा. आई होप आपको समझ में आएगा. दिस इज डन फॉर टुडे.
So keep studying. So we will meet in the next lecture. Till then, stay safe, stay healthy. Goodbye and good luck.